House song. Om Nagin थोड़ा बेस थी और ये रिवर्ब थोड़ा कम करिए. Virasat, hosted by the Center of Visual Arts, Avi University, and Speak Make. I, Pawan Sohas, a student of School of Business, Avi University, takes immense pride and pleasure to invite you all to this great historical day where we will be witnessing the Masters duo Pandit Ritesh Mishra and Pandit Rajneesh Mishra performing at our university. A hearty welcome to both you, sir. I also take the privilege of welcoming all the teaching and non-teaching fraternity of Avi University. Last but not the least, I welcome the heart of Avi University, our students. Duet singing in the Indian classical music is considered a very difficult art, for it requires not only individual competence but great amount of self-control to improvise and harmonize at the same time. The Masters duo, Pandit Ritesh Mishra and Pandit Rajneesh Mishra, have put in everything to achieve such excellence under the guidance of the living legends, the sun and the moon of the Banaras Gharana, Padma Bhushan Pandit Rajan Mishra and Pandit Sajan Mishra. Enliving the sixth generation of the family of great musicians, the artist brothers are gifted with a very pleasing voice and sensibility for musical notes. Skilled with rich knowledge of Indian ragas, the duos have performed at most prestigious concerts all over the world, such as the BBC Proms at Albert Hall, London, Lincoln Center, New York, United States, closing ceremony of Commonwealth Games 2002 in Manchester, United Kingdom. They have sung the third track Mahadeva in the album called Rise that has been nominated for the prestigious Grammy Awards. Top grade vocalists of All India Radio and Television, they have been awarded the Yuva Ratna Award for the year 1999, Bhavishya Jyoti Award for the year 2007, Sangeet Natak Academy Award for the year 2008, and Sangeet Samriddhi Award. On behalf of the university, we would like to offer a small token of gratitude to the masters. I would like to call upon Professor Krishnappa to provide a token of appreciation to Pandit Ritesh Mishra. Professor Rajavan to provide the token to Pandit Rajneesh Mishra. Now I call upon our student Shanta to provide the token of appreciation to Pandit Yogesh Bhatt on the tabla. Now I call upon the student Sagar S to provide a token of appreciation to Pandit Sunil Mishra. Now let us all, with a huge round of applause, give the stage to the masters of the musical tradition for the magic to happen. Thank you very much. ना इसके साथ तानपुरा ठीक है ना, क्या थोड़ा और पड़ा है? ना तानपुरा बाहर और बढ़ाइए थोड़ा, वही है. बाकी कुछ भी नहीं.
ये तबला जो है ये इस मॉनिटर पे दीजिए, थोड़ा सा हल्का कम कम एकदम कम कम, और हारमोनियम उधर दीजिए। We would like to speak in Hindi if you all can understand, as we are doing a शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। हम लोग बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं आज यहाँ आरवी यूनिवर्सिटी में आके। यार जैसा पहले था खुला हुआ साउंड दो दिया, हाँ, और एक जगह सेट करके आप भी चिल करो। सो वी आर रियली थैंकफुल, बहुत धन्यवाद। यहाँ आरवी यूनिवर्सिटी में आकर अपना कार्यक्रम देते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पिछले 4 दिन से हम वर्कशॉप भी कर रहे हैं इंटेंसिव, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमसे सीख रहे हैं वो भी बहुत ही लगन से उन्होंने 4 दिन में जो भी चीज तैयार किया है वो कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो आज का कार्यक्रम थोड़ी देर हम आपको कुछ 1-2 राग सुनाएंगे, और उसके बाद फिर आपसे संगीत से संबंधित कुछ बातचीत करेंगे। आपके अंदर कोई भी ऐसा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और आखिर में एक भजन सुनाकर हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कहाँ गया आवाज, टॉकिंग वॉइस? अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले हम राग श्री से हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस पर आधारित पहली रचना जो है वो बद्ध लय झप ताल, यानी मीडियम टेम्पो 10 बीट साइकिल पर बेस्ड है। प्रभु के चरण कमल। दूसरा कॉम्पोजिशन जो है वो द्रुत लय 1 ताल पर निबद्ध है, दैट इज फास्ट टेम्पो 12 बीट साइकिल। अब मोरी बाही गहो, राग श्री। संगीत हमारे लिए मां सरस्वती की आराधना के बराबर है। हम संगीत को अपनी पूजा मानते हैं, और आज हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ इस पूजा में सम्मिलित हो जाएं। अपना आशीर्वाद आज्ञा दीजिए, और जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा, और कुछ भी अच्छा लगे तो वो हमारे गुरुओं के चरणों में समर्पित है। आज 25 तारीख है, और हमारे गुरु को गए हुए 16 महीने आज हो गए। तो वो ऐसा लगता है कि शायद वो है ही, और हमें हमेशा उनका आभास होता है। और जब भी हम अपना कार्यक्रम देते हैं तो हम उन्हें कहीं ना कहीं बैठे हुए पाते हैं, कि वो भी बैठकर सुन रहे हैं, और उनके सामने हम जब भी गाते हैं तो हमें इतनी ऊर्जा वो प्रदान करते हैं। तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। राग श्री। धन्यवाद।
बनी बनी
सा नि सा रे सा नि धा प म प नि सा रे म प रे ग रे सा नि सा रे 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 सा नि सा 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 नि धा प म म म म रे रे ग ग रे सा नि सा रे रे सा नि धा प म प नि सा रे रे सा सा प re ma ba da ma ba re ga re sa ni sa re re sa ni da ba ma ba ni sa re re ga 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 re sa ni sa re ma ba da ma ba ni sa re re ma ba ni sa re da ma ba re ga re sa ni sa re re ga re sa ni sa re re ga re sa ni sa re ga ni da re sa re ma de ba ma ni da ni da ba ma ba de ga re sa ni da sa da da ni da ba ma ni da ba ma ba da ma de ga sa re ga ma ni sa re ba ba ni da ni da ni da ba ma ba de ga re sa ni da re ma ba ba de ga ga re re sa da ga
दीनानाथ जगत पालनहार दयाल प्रभु अब मोहि पाहि गो। दीनानाथ जगत पालनहार दयाल प्रभु अब मोहि पाहि गो। दीनानाथ शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ये अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह आप ताली बजाइए, वाह कहिए, वाह वाह कहिए। ये सिटी बिटी यार निक्का का प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है। एक छोटा सा कॉम्पोजिशन राग मियां मल्हार में सुनाने के बाद फिर थोड़ा बातचीत करते हैं।
ये कॉम्पोजिशन सिर्फ 200 साल पुराना है, 120 years only। हाले उमड़गन घूमर बोदरिया चलत पुरवाई, बोदरिया चलत पुरवाई, सना
Ora,
घुमड़ गन घुमड़ बरसे थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादा बोर तो नहीं हुए? क्या करें, हम लोग ऐसे ही गाते हैं कुछ चारा ही नहीं है जैसे सिखाया गया वही प्रस्तुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग बोर हो गए तो हम क्या करें, कॉलेज को कहिए कैसे आर्टिस्टों को ना बुलाया करें आगे से। वेल, आप लोग इतने शांत होकर सुन रहे थे कि आपकी जो एनर्जी हमें मिली ना, उसी से हम लोग थोड़ा बहुत गा पाए। सच में ये ऑडियंस की ही एनर्जी है जो एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करवा देती है। आपको ये पता है? दैट्स द वे यू कनेक्ट विद द ऑडियंस। अगर आप लोग इधर उधर जा रहे होते, आ रहे होते और सुनने में उतना ध्यान नहीं होता तो हम लोग का गाना भी वैसे ही हो जाता। आप लोग इतने तन्मयता से, इतने पेशेंटली बैठकर हमें झेल रहे थे कि आपका जो ऊर्जा है वो हमारे लिए कारगर साबित हुआ। थैंक यू सो मच। अब आप लोग के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, आई एम श्योर। अगर आप कुछ भी सवाल ऐसा पूछना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री। Anyone wants to ask any questions? Who's the lucky first one to ask the question? हम तो ऐसे ही कहेंगे, कुछ तो होगा सवाल। सर इसको क्या कहते हैं? ढोलक? नहीं नहीं, तबला। सर इसे क्या कहते हैं? हारमोनियम? नहीं नहीं नहीं, पेटी? नहीं नहीं नहीं, नहीं संवादिनी। हाँ जी सर, मैंने सुना है आपका पहला जो आपका प्रस्तुति हुआ था वो 9 साल की उम्र में। जी, मैं 9 साल का, 7 साल के, और हमने बनारस में ये प्रस्तुति दी थी और हमने पूरिया धनाश्री गाया था, जो दादाजी ने सिखा के हम लोग को तैयार करके लेकर गए थे। वैसे ही सब सामने बैठे थे छड़ी लेकर और मतलब उनको देख देख के हम लोगों ने वो गाया पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि आपने वो प्रस्तुति देने से पहले उस राग को मतलब कितने साल तक शायद आपने रियाज किया होगा, या क्या वो आपका पहला राग था जो आपने सीखा था? एक्चुअली देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा।
हम लोगों को ना जो प्रैक्टिस करने के लिए राग दिया गया था, रोज करना है, वो सुबह राग भैरव और शाम को राग यमन, 6 साल तक। पहली बात तो ये। उसी दौरान जब हम लोग ये रियाज के दौरान जब कर ही रहे थे, तो क्या है ना कि जो गुरु होता है उसको गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऑब्जर्वर भी होता है, वो देखता रहता है कि शागिर्द के अंदर कितनी क्षमता है, कितना पेशेंस है कि वो मेरी बात को आगे मानेगा, मेरे इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो शिष्य बनना भी बड़ा कठिन काम है कि गुरु के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर जाना। तो हमने कोशिश की थोड़ी बहुत, और उस दौरान ही हमें फिर दादाजी ने ये पूर्या धनाश्री सिखाया और पूर्या धनाश्री सेट कराया। एक्चुअली सिखाया का मतलब सेट करा दिया कि तुम लोग को गाना है। अब वो तो 2-3 मतलब 1 हफ्ते पहले से गाना था, तो 1 हफ्ते से ही हम लोग का नींद सब उड़ गया था कि मतलब स्टेज, इतने सारे लोग, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब एकदम। लेकिन दादाजी का हौसला बहुत जबरदस्त था और वो हमेशा पॉजिटिव ही, हमारे गुरु पिताजी, चाचा जी भी और दादाजी भी हमेशा पॉजिटिव की, यार कर लोगे, घबराओ मत। तो इस तरीके से हमें मोटिवेशन मिला और हम लोग वो निभा पाए, गा पाए। तो ये उन्हीं लोगों की कृपा थी। उन्होंने चाहा कि हम गा लें तो हमने गा लिया। एक्चुअली गुरु के चाहने पे होता है, इसीलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो गुरु पर विश्वास करोगे तो गुरु अगर सोचेगा कि हाँ ये परफॉर्म कर ले तो कर लोगे। इसलिए अभी भी हम आज के ये ऑडियंस में भी हम अपने पिताजी को कहीं ना कहीं देख रहे हैं और वो आके हमें ही गवाने का पूरा उनका प्रयास है। उन्हीं की वजह से गा पा रहे हैं। बहुत जल्दी। खैर, और कोई सवाल? जो हेलो सर। हाँ जी, आ रही है बात। सर कितने सुर और ताल होते हैं? सुर होते हैं 12 और ताल कितने होते हैं ये तो तबला प्लेयर बताएंगे, हमें तो, हम तबला थोड़ी बजाते हैं। भैया बताओ कितने ताल होते हैं? कितने ताल होते हैं? बस 3 ताल, 1 ताल, जप ताल, रूपक, धमार, पंचम सवारी, मध्य ताल और सूल ताल। तो बहुत सारे ताल होते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस जानकारी को हासिल करने के लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ताल भी हैं जो नए बने भी हैं, जो हम काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब 9:15, 8:30, इस तरीके का 11:15 ऐसे ताल भी बने हैं। तो ताल ऐसी चीज है कि जो आप भी बना सकते हैं। आप इतने अगर टैलेंटेड हो, इस हद तक अगर आप उसको देखें अपने सब्जेक्ट को, तो आप भी उसमें कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। स्वर जो है वो 12 सुर बने, 12 सुर का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद आया, उसमें से बना थाट, यानी पेरेंटल स्केल, ठीक है। और पेरेंटल स्केल बने तो उसमें से राग निकले, एक थाट में से कई राग निकले, ऐसे बहुत सारे थाट निकले। कहा जाता है 32 थाट होते हैं। लेकिन हम लोगों को हमेशा से ये कहा गया है कि प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुमको स्टेज पर परफॉर्म करना है। तुम्हें इंस्टीट्यूट में जाके कहीं जॉब नहीं करना है। तो शुरू से माइंडसेट ऐसा किया गया था कि परफॉर्मिंग आर्ट पर ध्यान दो, कि राग थियोरेटिकली कैसे लिखा जाता है ये सब चीजें मालूम है, लेकिन उसकी प्रस्तुतिकरण जैसा लिखा हुआ वैसा नहीं होगा। उसमें उसके कहनगत पे आधारित है कि आप कैसे कहेंगे, कैसे उसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे उसे उसमें एक विजन पैदा करेंगे, है ना? ठीक है, समझ आ गया? यस सर। थैंक यू। ये रे ऑरेंज। सर
कहा था कि ये मतलब आपने जो पहले परफॉर्म किया वो सिर्फ 200 साल पहले बना था, तो आप कौन सा सबसे पुराना जानते हैं? ये 200 साल पहले जब मैंने सीखा था ना, तब एक्चुअली वो जो कॉम्पोजिशन था ना, वो हमारे पिताजी के पर नाना जी, जो नेपाल दरबार में उस जमाने में कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे, पंडित नानक प्रसाद मिश्र जी, उनकी रचना है। तो वो कब थे, किस सदी में होंगे, तो 200 साल पुराने तो हो ही गए ना, क्यों? और पुराने कितने गा सकते हैं, और बहुत अब सारे पुराने इसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, तो ये तो शास्त्रों से आया हुआ संगीत है। और कितने सारे ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं जो सालों साल पुराना है, और उसकी गिनती भी हम नहीं सोच सकते। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग म्यूजिशियंस रहे, उनके थ्रू हम लोगों को ये लेगेसी मिली, सुनने को मिला, सीखने को मिला। तो ये सब 150 साल पुराना नहीं, मतलब वर्षों वर्षों पुराना राग है, सदियों सदियों पुराना राग है, जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एग्जिस्ट आगे भी करे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। स्पिक मैके का जो एम है वो यही है कि आप अपनी खुद की संस्कृति से, संगीत से परिचित हों, भले ही आप उसे ना करें, लेकिन कम से कम उसे आदर सम्मान दें, और हो सके तो फ्यूचर ऑडियंस बने। इसीलिए इसी अपेक्षा से स्पिक मैके आप जैसे बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स में पिछले मोर देन 40 इयर्स से कार्यक्रम करता आ रहा है, और अलग अलग विधाओं को लेकर वो आपके पास प्रस्तुत लेकर आता है प्रस्तुति, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो वोकल हो, चाहे वो पेंटिंग हो, तो हर कला को आपसे रूबरू कराता है, और उसकी सिर्फ उम्मीद है आपसे कि आप उसको समझें और उसे अच्छे से शेयर करें, उसमें आपको गर्व महसूस हो, प्रिजर्व करें एक्चुअली। तो यही एक उम्मीद लेकर हम सब स्पिक मैके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू जी। सर, हाँ, हेलो sir, have you composed any own work recently? Own songs? We have composed many compositions, but we dedicated to our gurus. Oh, which So is let the it recent flow. one, sir? A recent one. Recent one is on this same rag, Miya Mallar, we composed one swara combination composition, sur ka. Tha din din da da. Re pa ma pa ga ma re sa ni sa da ni ma pa re da ni sa. Re pa ma pa ga ma re sa ni sa da ni ma pa re da ni sa. Re pa ma pa ni da ni sa re sa ni sa re sa ni sa. Re pa ma pa ga ma re sa re pa ma pa ga ma re sa da ni ma pa re da ni. Mama pani da ni da ni da ni da ni da da ni mama mama ni da ni da ni da ni da ni da da ni mama papa pa ga ma re sa papa pa ga ma re sa ni sa re pa ni da ni sa re pa ma pa ga ma re sa da ni ma. तो इसमें तीनों लय का मिश्रण है। Pama pa ga ma re sa ni sa da ni ma pa re da ni ma pa re da ni ma pa re da ni sa re pa ma pa ga ma re sa ni sa da ni ma pa re da ni
सा रे प म प नि ध नि सा रे सा नि सा रे सा नि सा रे प म प ग म रे सा रे प म प ग म रे सा नि सा ध नि म ध नि म प ध नि म. Thank you. Welcome. So now we conclude our recital. There is acha. Oh. Puch. हमारे अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर चाहत होती है कि हम संगीत सीखें और समझें, but a lot of times we don't maintain consistency. But through your experiences, we like to share how to maintain or build that discipline and consistency. First of all, you need a good guru to learn under his or her able guidance. And then फिर गुरु ही बताएगा कि आपको कैसे रियाज करना है और आपको उसे बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, ब्लाइंड फेथ करके गुरु के ऊपर ट्रस्ट करके. और वो जो बताए, वो जो भी बताता है वो शिष्य के प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अभी लेवल क्या है. उस हिसाब से वो आपको बताता है कि इसको करो. अब आप बोर भी हो जाओ तो भी करना है. शर्त ये है, अगर बोर हो गए और उसके बाद भी कर रहे हो तो वो बाद वाला जो रियाज है ना वो लगता है, पहले वाला नहीं लगता है. तो उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और वो देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है और तुम धीरे धीरे उसमें मेहनत कर रही हो तो तुम्हें और शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे. तुम मेहनत और करोगी तो अपना एक टारगेट बनाओ और वो गुरु ही निश्चित करता है कि 2 साल में तुम कहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हारा प्रैक्टिस देखकर इनिशियली. तो मेहनत के ऊपर सब कुछ है. और ये सब करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पेशेंस. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या कर्नाटिक म्यूजिक, कुछ भी म्यूजिक करने के लिए यू हैव टू हैव पेशेंस. जितना पेशेंट रहोगे उतना मिलेगा, जितना झुकोगे उतना मिलेगा. Sir, could you please tell them about the Swaramantal? And I think this composition that you just sang in Miyaki Malhar, the Bandish, I'm sure there many of them didn't know why it was composed like that. Miyaki Malhar's association with the rain and how that composition has been composed. You can please tell them. This composition is very old, as he said, 200 years old. So, आपने जब कॉम्पोजिशन सुना तो आपको उसमें बिजली चमकने की और तेज हवा चलने की, बादल गरजने का ऐसा कुछ इफेक्ट मिला. तो वो इफेक्ट जो है वो भी गुरु सिखाता है साथ में. अब आप उसको उस कुबत से निकालें, उस कुबत से आप प्रस्तुत करें, तब जाके वो आपका सफल होता है. इसका सुनने वाला भी जो प्रेजेंटेशन है वो इसीलिए ऐसा है इस कॉम्पोजिशन का, क्योंकि उस जमाने में माइक्रोफोन्स नहीं थे. तो आप हवा या बरसात या बादल गरजना कैसे बताएंगे? अब विदाउट माइक्रोफोन आपको वो दर्शन कराना है कि बारिश हो रही है, तो उसके लिए इस तरीके से कॉम्पोजिशन उस जमाने में बनते थे कि जो लोगों को वो फील करा सके. और 100 साल पहले के जो लोग हुआ करते थे, 100, 125, 150 साल पहले के लोग जो थे वो अभी के लोगों से काफी, मतलब 6 फीट तो छोटा मोटा हाइट था, 6.5, 7 फीट. हमारे जो पिताजी के नाना जी थे वो 6'8" थे. तो 6.5 फीट से ऊपर हो गए ना, 6'8". तो उनका जो डील डॉल था वो मतलब बिल्कुल एक पहलवान जैसा ही था. और वो रोज कम से कम 1000 दंड बैठकी मारते थे, 100 बादाम खाना. तो इतनी कुवत और इतना, तो उसी तरीके से प्रस्तुत भी करना. तो उस वक्त माइक नहीं है तो वो गाना ही, आवाज ही इतनी पावरफुल होती थी कि वो बिना माइक के ही अपने आप में सब जगह पहुंच जाए. तो बहुत ये सब चीजें हमें मिली और हम उसे गा पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है.
कि ये सब कॉम्पोजिशन बहुत ही एक ना जेम्स की तरह, प्रेशियस जेम्स की तरह, जो आज तक आप सुन पा रहे हैं, हम गा पा रहे हैं। और रेनी सीजन राग का मतलब ही होता है कि जब तक आप उसमें वो इफेक्ट ना दें, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर 12 महीने नहीं गा सकते, ये तभी गा सकते हैं जब वो माहौल हो। तो उस माहौल को जीने के लिए उस तरीके की उसका इफेक्ट देना जरूरी है उस कॉम्पोजिशन में। और हर कॉम्पोजिशन जो भी क्रिएट हुए उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं शब्दों के माध्यम से जो कि वो आपको बारिश का और बादल का और इसका डिपिक्शन एक देता है। और वो उसमें अगर आपने अपनी ऊर्जा लगा दी और उसको उस तरीके से प्रस्तुत किया तो वो और अच्छा डिफाइन हो सकता है। यही बात। अब अदरवाइज जैसे आली उमड़ घन घुमड़ बरसे रे, आली उमड़ घन घुमड़ दरिया चलत पुरवाए सन नन 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 थर थर कापे मनवालन जिंगुर बाबुले चूम झन नन नन आली उमड़ घन घुमड़। ये भी सुर में ही हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें कितना फर्क था, खाली आप सोचिए कि वहां गाना ये जो है वो ये बात है कि हमारा म्यूजिक, सारा म्यूजिक जो है ना वो कहन गत पर आधारित है कि हम कहेंगे कैसे। और नॉट ओनली रेनी सीजन राग बट कोई भी राग गा बजा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। प्रभु के चरण कमल, उसको कैसे जीना है। अब उसको प्रभु के चरण कमल निसतीन सुमीर रे प्रभु के। अरे प्रभु कहां से आएंगे, तो डंडा मार रहे हो उसमें। अब ये किस रस की ओर इशारा कर रहा है, पहले उस पर ध्यान दो। ये भक्ति रस की ओर इशारा कर रहा है, तो अपने अंदर वो भक्ति रस लाओ, तब इसको रेंडर कर सकते हैं। ऐसे ही जो श्रृंगार रस की बंदिश है उसमें वो श्रृंगार रस लाओ अंदर, तब वो जो वीर रस की है उसमें वीर रस लाओ। तो ये सारी चीजें गुरुओं से सीखते भी हैं और उनको ऑब्जर्व करके भी आते हैं। पुराने लोगों को सुनना और सुनते रहना, सुन सुन के उसके मर्म को समझना कि आखिर ये है क्या। तो इसमें बहुत मतलब एक किस्म से देखिए पूरी जिंदगी निकल जाती है और फिर भी म्यूजिक पूरी तरह से समझ नहीं आ सकता। मियां तानसेन जी आखिरी समय में जब वो डेथ बेड पर थे तो लोगों ने पूछा कि हुजूर आप तो युग पुरुष हो गए, ऐसा ना कोई हुआ और आगे कोई होगा भी नहीं, तो आपने संगीत में क्या पाया। तो उन्होंने क्या कहा पता है, इस जन्म में थोड़ा थोड़ा गंधार की पहचान हुई है। सातों सुर को समझने के लिए 7 जन्म संगीतकार होना पड़ेगा, तब शायद थोड़ा बहुत समझ आए। इतना बड़ा आदमी है जो कि वाकई युग पुरुष है, वो अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो हम लोग किस खेत की मूली है भाई। हम लोग किस राग कौन सा कॉम्पोजिशन बना के चैंप बने पड़े कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। पहले वो तो कर लो। आज के समय में जो बहुत सारे म्यूजिशियंस के अंदर एक वो है कि मैंने ये राग बनाया, मैंने वो कॉम्पोजिशन बनाया। पहले पुराना किया, पुराना पूरा सुना दो भाई, उसके बाद तुम्हारा नया वाला भी सुनेंगे। एक आर्टिस्ट का नाम आप मेरे को बताओ अभी कि जो अपने पूरे समय में, जिंदगी में जितने राग है सारे गा के गया हो। कोई नहीं पैदा हुआ। राग जो है वो कलाकार से बड़ा रहा है और रहेगा, है ना। तो इसलिए ज्यादा गुमान करना अच्छा नहीं है। संगीत के आगे नतमस्तक होना बहुत जरूरी है, उसे उस भाव से देखना जरूरी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक राग जो बताया गया उसको करो, करते 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 एक समय आएगा कि जब
गुरु ही बोलेगा कि चलो आज तुमको कुछ और भी सिखा देते हैं। तो ये बड़ा पेशेंस की चीज है कि आप कितने पेशेंटली आप अपने काम को कर रहे हो, वो गुरु ऑब्जर्व करता रहता है और आपकी परीक्षा हर पल लेता रहता है। चलिए, हम लोग बहुत समय हो रहा है, 7:15 हो गया, सब बच्चों को भूख लगी है, तो हम लोग एक छोटा सा भजन सुना देते हैं बस, है ना। ये भी गुरु के ऊपर है। अच्छा चलो, रजनीश जी कह रहे हैं कि हे गोविंद सुना दे। हे गोविंद राखो शरण, ये एक सच्ची घटना पर आधारित ये भजन है। एक बार एक एलिफेंट जो है, हाथी गजराज, वो सिंधु नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी जब पानी के पास होता है तो वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो पानी में नहाता है, पीता है। तो ऐसा ही कुछ वो भी गजराज कर रहे थे। अचानक बीच नदी में से एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जिसे इस भजन में कहा गया है ग्राह, वो प्रकट होता है। हाँ, और वो प्रकट होके गजराज के पास जाकर उसका पैर पकड़ के उसे नदी में खींचता है। ऐसे में दोनों में युद्ध होता है, लेकिन क्योंकि वो हाथी की जगह नहीं होती तो हाथी डूबने लगते हैं, गजराज डूबने लगते हैं। तो ऐसे में वो सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, लग गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, लग गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अपने महल में, द्वारका में विराजमान थे। तो गजराज की पुकार सुनकर वो पैदल ही दौड़े, अपने वाहन पर भी, गरुड़ पर नहीं गए, पैदल ही दौड़े उसे बचाने। तो कवि कहते हैं, द्वारिका में शब्द भयो, बचाओ बचाओ बचाओ। द्वारिका में शब्द भयो, गरुड़ तज सिधारे। ग्राह को हरि मार के, गजराज को उबारे। सूर कहे, सूरदास जी की रचना है। सूर कहे श्याम सुंदर, आसरे तुम्हारे। मेरो तेरो न्याय है, यमराज के द्वारे। ये तो होना ही था। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ये भी आए हैं, थोड़ा इनका भी कलम देखिए। आए आए
Voice is a gift, but everything else is labor. Character is born in the stormy billows of this world, and the artistry that you saw today is 4 decades of rigorous sadhana, austerity, and penance. Pandit Rajneesh Mishra and Pandit Ritesh Mishra carry a very big tradition on their shoulders. The Banaras Gharana, which has a 400-year-old legacy, and indeed they are the torch bearers of this Gharana. Thank you very much to both of you for and for this wonderful recital. Pandit Sumit Mishra's evocative harmonium, thank you so much. And Pandit Sumit Mishra's very sensitive tabla accompaniment, thank you so much. Our students are indeed very
blessed to have this tryst with greatness. They have put in 4 decades to perform like this. After 4 days of workshop, tomorrow you all are hazarding the performance. And I must really say this is a humbling moment for all of us. Thanks to both of you once again. Thank you. 2:30 we have student at 3 o'clock. We have student presentations, the 4 workshops. Students who have attended the 4 workshops make short presentations from what they've learned in these 4 days. And at 5:30 we have Janab Bungar Khan coming with his 7-member team to enthrall you with the timeless music of Rajasthan. Please do come. Good night.